So this is type 2e. Heading to वही है, differentiate the following to x. Rest I have shown you the substitution method है ये. So let us take down the examples. Continuation of unit 3. So unit 3 का आप लिखिए question number 13. Write down sin inverse of 2x into under root of 1 minus x square. This is given us to be evaluated. Now, if this question is asked in exam, it will carry 2 marks. 2 mark का example है. Now, observe ये जो problem है, we will not differentiate directly. किसी भी previous type से solve नहीं करेंगे हम इसको. Not by 2a, 2b, 2c, 2d किसी से भी नहीं होगा. ठीक है, 2a से हो सकता है, but it will become slightly lengthier. ठीक है, so we'll avoid type 2a in this. So now what we do, so you'll have to keep the expression table in front of you. तो expression table है वो आपको मैंने आपको बताया था कि लिख के रखो और उसको आपको सामने रखना पड़ेगा. Only then you can understand the thing. Now, according to this expression, we have to make use of the substitution that is available in that table. Okay, चलो write down solution for the problem. So लिखो let's consider this as y. Let y is equal to, this will be written as sin inverse of 2x into under root of 1 minus x square. Likho first step. Now we are going to use method of substitution in this, students. Okay, so what substitution are we going to do according to this expression? So two options hai. We can put x is equal to sin theta or we can put x is equal to cos theta. So let's do it by one of the way. Write down, put x is equal to sin theta. Therefore, theta will be written as sin inverse of x. X is equal to sin theta लेंगे हम. So theta will be written as sin inverse of x. अब क्वेश्चन में जहां पर भी x है वहां पे हम sin theta डाल देंगे. ठीक है, so write down. Initially I'm going stepwise for your understanding. So write down, therefore y is equal to sin inverse of, क्या हो जाएगा? Write down, this is going to become 2 sin theta into under root of, this is going to become 1 minus sin square theta, close the bracket. I repeat, there are two options. X is equal to sin theta डाल के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, x is equal to cos theta डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. I'll show you another way. पहले ये देख लो. तो x के जगह पे हमने sin theta डाला. Now let us simplify this bracket. Write down, therefore y is further equal to sin inverse remaining same, 2 sin theta remaining same. On the simplification ये हो जाएगा under root of cos square theta. Fundamental identity है 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, and under root of cos square theta is going to become cos theta obviously in the next step. ये सारे simple steps हैं जो हमने trigonometry में already सीखे हुए हैं in 11th standard. So that's why say trigonometry plays an important role. How much important? Very important. तो ये हो जाएगा 2 sin theta into cos theta हो जाएगा under root of cos square theta, and therefore y is further equal to sin inverse function remains same, and we all know that 2 sin theta into cos theta is nothing but formula for sin to theta. इसीलिए तो हम ये substitution करते हैं ताकि ये जो given expression है उसको हम simplify कर सके. To simplify the given expression, we do this work. Now we use property of inverse function. अभी क्या property क्या बोलता है? Property बोलता है कि sin inverse of sin x equal to x होता है. This is what the property says. So therefore y is equal to what? To theta. Sin inverse of sin to theta है तो 2 theta हो जाएगा. अभी थीटा को हम रिप्लेस करेंगे. So therefore it's almost getting up. चलो ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ. Therefore y is further equal to 2 into
थीटा शुड बी रिप्लेस्ड, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉब्लम एक्स के फॉर्म में दिया है, अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, अब प्रॉब्लम थीटा में, बट इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं फाइंड करेंगे राइट नाउ, ठीक है। तो थीटा को हमें वापस रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो थीटा को क्या लिखेंगे हम, थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स, written therefore y is equal to two remaining same, theta will be replaced by sine inverse of x. This is compulsory, huh? Please do remember this. Theta should be always replaced before we differentiate. तो सभी differentiate करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्टिंग में x के फॉर्म में था, अभी वापस x के फॉर्म में हमें मिल चुका है। You try to remember that way. So now differentiating with respect to x, so dy by dx is, can anyone tell me what is the final answer? 2 by root of 1 minus x square. Absolutely, very good. It is 2 by root of 1 minus x square. That's it. Problem is over. No d by dx दिखाने की, steps दिखाने की कुछ भी जरूरत नहीं है. That's it. Problem खत्म. 2 constant है, remaining same. Sin inverse of x का derivative 1 upon under root of 1 minus x square होता है. वो हम बहुत बार already use कर चुके हैं. ये हमारा final answer है. That's it. Problem is over. Note down. तो ऑब्वियसली यू विल आस्क कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा x को sin थीटा ही डालना है, तो एक्सप्रेशन टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, बस ये तीन ही चीजें कैलकुलस में। प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स इज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करेंगे तभी ऑब्जर्वेशन आएगा और तब उसके बाद सॉल्व होता है। तो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट द प्रॉब्लम। अभी यही चीज अगर हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा डाला, देखो डाल के दिखाता हूँ, नॉट कंप्लीटली, आई विल शो यू इन शॉर्ट। ओके, सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे, आई विल शो यू, डू नॉट राइट डाउन, जस्ट हैव अ लुक, आई विल राइट डाउन एज अ नोट, ठीक है। अभी सपोज अगर मैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालता, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम थीटा वुड हैव बीन कॉस इनवर्स x। डिफरेंस में देखो आपको समझा देता हूँ, चाहिए तो फिर आप लिख लेना। अभी suppose if I put x is equal to cos theta over here, second way, तो theta will be cos inverse of x। अभी थोड़ा ओरल वर्किंग करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा। ऑब्वियसली x के जगह पे cos थीटा डालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम 2 cos थीटा और ये सिंप्लीफाई करके बन जाएगा sin थीटा। नाउ 2 cos थीटा into sin थीटा इज अगेन sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा मिलता, आप कॉस थीटा डालो या साइन थीटा डालो, ये तो बनना साइन टू थीटा ही था, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा बन जाता, बट जो चेंज है उसके बाद आता। अब y हमें इस प्रॉब्लम में 2 साइन इनवर्स x मिल रहा था, अब 2 थीटा के बाद अगर हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालते तो ये 2 कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है ना। So instead of getting 2 sin inverse of x, we would have got 2 cos inverse of x। अब जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते तो dy by dx क्या मिलता, तो dy by dx will be -2 upon under root of 1 minus x square, और ये भी करेक्ट आंसर है। तो जस्ट राइट डाउन द सेकंड मेथड एज अ नोट, ये सेकंड मेथड है, नोट मतलब दिस इज एक्चुअली नथिंग बट सेकंड वे, सेकंड मेथड। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बस इतना ही लिखो, बाकी तो ऑलरेडी सेम है। मतलब x इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे अगर हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा डाला तो क्या होता है वो मैंने बता दिया, बीच के स्टेप्स सारे सेम आने वाले। तो वही 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, तो 2 थीटा रिप्लेस किया थीटा और डिफरेंशिएट किया। बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप बोलोगे सर एक में तो प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, बराबर है, सब्स्टिट्यूशन अलग है ना, एक में साइन थीटा डाला एक में कॉस थीटा डाला, दोनों का डेरिवेटिव अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो साइन का तो डिफरेंस आएगा ही, बट बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यू नीड नॉट टू वरी कि ये करेक्ट है कि वो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो प्लीज डू रिमेंबर, ऐसे प्रॉब्लम्स में प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग मेथड ऑफ इट। ओके, आई होप द डिफरेंस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। Yes, sir. Very good. Yes, sir. Thank you for your response.
So please note down the next question, that is question number 14. Cos inverse of 2x square minus 1 plus cosec inverse of 1 by under root of 1 minus x square. अभी दो टर्म्स कंबाइंड है, बीच में प्लस साइन है, ठीक है. चलो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. अच्छा, सबसे पहले स्टेप आपको पता है, लेट y इज इक्वल टू, राइट डाउन, लेट दिस बी इक्वल टू y इटसेल्फ. अभी मैं यहीं पे लिखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू this whole thing, cos inverse of 2x square minus 1 plus cosec inverse of 1 by under root of x square minus 1. अभी आप देखो, सिंगल प्रॉब्लम में दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हम फॉलो नहीं कर सकते इन दिस प्रॉब्लम, so we have to put up only one substitution. Now observe this expression 2x square minus 1. आप टेबल में ढूंढो ऐसा expression 2x square minus 1 and can you tell me what substitution can be done for this? X is equal to cos theta. Absolutely, very good. हमें डालना है let x is equal to cos theta, और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये दोनों टर्म्स में डालना है. प्रॉब्लम सेम है, तो ऐसा नहीं कि इसमें sin थीटा डाला, इसमें cos थीटा डाला और इसमें sin थीटा डाल रहे हैं. नो, दो अलग सब्स्टिट्यूशन सिंगल प्रॉब्लम के लिए वर्क नहीं होंगे, तो एक ही सिंगल सब्स्टिट्यूशन डालना है हमें. ओके, चलो वेरी गुड. तो राइट डाउन, पुट लिख सकते हो या लेट लिख सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है. तो पुट x is equal to cos theta, therefore theta will be cos inverse of x. अब क्वेश्चन में जहां पर भी x है, x के जगह पे हमें cos theta डालना पड़ेगा, वही तो प्रोसीजर है. written therefore y is equal to cos inverse of, this will be written as 2 cos square theta minus 1 plus cosec inverse of, अच्छा वन मोर थिंग यू कैन डू, इसको आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल है साइन इनवर्स, so you can do that way also. Okay, and this will be 1 upon under root of, ये हो जाएगा 1 minus cos square theta. अभी थोड़ा हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. लाइक we know that 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta, और वो sin square theta रूट के बाहर आके sin theta बन जाएगा, ठीक है ना. Written therefore y is further equal to, this is cos inverse of cos 2 theta, recollect 2 cos square theta minus 1 का फॉर्मूला cos 2 theta होता है, plus this will be written as cosec inverse. चलो फिलहाल हम इसको cosec inverse ही रखते हैं, and this is going to become nothing but 1 by sin theta. ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना अलाउड है. 1 minus cos square theta sin square theta, रूट के बाहर आ गया 1 by sin theta, and we all know 1 by sin theta is nothing but cosec theta होता है. So therefore y is equal to cos inverse of cos 2 theta plus this is cosec inverse of cosec theta. Our aim is to simplify the function. इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम डायरेक्टली, तो प्रोसीजर लेंथियर हो जाएगा, और जैसा आंसर चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो ये बन गया 2 थीटा. cosec inverse of cosec theta is theta by the property of inverse function. Therefore finally y is equal to 3 theta. Therefore we continue ahead. Therefore y is equal to 3 into theta को हमें replace करना पड़ेगा, so theta will be replaced by obviously cos inverse of x, and now when we differentiate with respect to x we get dy by dx. चलो आप आंसर लिखो, you know how, what is your answer. ठीक है, ये हो गया. Now you do it, you do the working. By that time I'm writing down the next question. मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा वो. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं. Randomly we take up y is equal to cos inverse of 3x
minus 4x cube. Okay, someone tell me the answer for the previous one. dy by dx क्या मिला? minus 3 by root of 1 minus x square. Absolutely, very good. It is minus 3 by root of 1 minus x square. यही हमारा आंसर. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो. प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. खाली हमें वो जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है वो याद रखना है एंड दैट एक्सप्रेशंस आर टू बी रिमेम्बर्ड. एक्सप्रेशंस कब याद रहेंगे स्टूडेंट? जब हमें फॉर्मूलेज याद है. अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद है तो एक्सप्रेशंस तो सारे सेम है. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट सब्स्टिट्यूशन इज टू बी डन इन दिस? Sin theta. X is equal to sin theta. X equal to sin theta. Very good. Both of you are correct. So if this question अगर ये एग्जाम में आया तो they may ask for 3 marks. अगर ये आया तो ये 2 mark के लिए आएगा. Yes. So we put तो y is equal to लिखा मैंने, तो solution obviously starts over here itself. You know that now onwards कि आपको कैसे देंगे क्वेश्चन, cos इनवर्स ऐसा देंगे तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो लेट y is equal to करके ही करना है. So what do we put over here? So we put x is equal to sin theta. So therefore theta is nothing but sin inverse x हो जाएगा. Okay. So now what is going to happen? Y is equal to, this is cos inverse given. So ये cos inverse of this bracket is going to become 3 sin theta minus 4 sin cube theta. अब ये किसका फॉर्मूला है हम सबको मालूम है. This is first. Y is equal to cos inverse of, now this is going to become sin 3 theta. Okay, अभी इसके आगे का प्रोसीजर मेरे को कोई बता सकता है क्या? What is to be done next? Any idea? ये cos इनवर्स है और ये sin फंक्शन है. Allied angle. Yes, absolutely. Very good answer. We have to use allied angle formula. Correct, absolutely. तो देखो क्या हो जाएगा? Y is further equal to cos inverse of, this will be written as cos of pi by 2 minus 3 theta. Close the bracket. अब मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ. Since standard we are already doing that. You know that cos pi by 2 minus theta sin theta होता है. अब यहाँ पे हम प्लस नहीं ले सकते हैं. cos pi by 2 plus theta minus sin theta हो जाता है. तो you can't write down plus, but कोई कोई एग्जांपल्स में मैंने आपको प्रीवियसली बताया है वहां पे प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ माइनस ही लेना पड़ेगा. बस अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे. देखो हेडिंग देखो आप ऊपर, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड देन इनवर्स का प्रॉपर्टी एंड देन डिफरेंशिएट. ठीक है ना? तो अभी सब्स्टिट्यूशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अभी प्रॉपर्टी. So what will this become? So this will become pi by 2 minus 3 theta. Why? We know the reason. Cos inverse of cos x is equal to x. Property of inverse function हमने यूज कर लिए है. अभी थीटा को रिप्लेस करो एंड डिफरेंशिएट करो. So therefore y is equal to pi by 2 minus 3 into theta is replaced by sin inverse x. So now differentiate and tell me the final answer. हो गया कि please let me know your answer. Okay. Minus 3 by root of 1 minus x square. Absolutely correct है. Perfect answer है. Correct. Others also please check got the same answer. ठीक है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3 रिमेनिंग सेम साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कन्वर्ट हो गया. नाउ प्लीज डू रिमेंबर कि व्हेनेवर इट इज कॉस इनवर्स और अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, बेसिकली साइन है, so then convert it to form of cos and then you differentiate, मतलब then you apply the property, replace and then differentiate. ठीक है,
दिस इज द वे वी डू. अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, तो उल्टा करना है फिर प्रोसीजर. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So please make a note of the next question, students. Tan inverse of y is equal to tan inverse under root of 1 minus x upon 1 plus x. This expression is available. ठीक है ना? So now obviously जब वो आपको क्वेश्चन देंगे तो सिर्फ इतना ही देंगे, tan inverse of. Now why I am taking these random numbers, because बाकी के जो examples है वो आप खुद से कर सकते हो, इतने easy है. Once I do the problems which I am selecting, the problems which are left out can be very easily done by you. Okay, चलिए लिखिए solution for the problem. So write down, let first step, let y is equal to tan inverse under root of 1 minus x upon 1 plus x. Now keep the expression table in front of you and see this expression under root of 1 minus x upon 1 plus x. So can you see and tell me what substitution is to be done in this? Cos x theta equal और to cos cos 2 2 theta. और cos 2 theta. Absolutely, very good. दो ऑप्शन है इसमें हमारे पास, या तो हम x is equal to cos theta डालें या x is equal to cos 2 theta डालें. तो x is equal to cos theta डाल के करते हैं हम. ठीक है, चलो राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन लिखो आप. पुट x is equal to cos theta. Therefore theta will be equal to cos inverse of x. अब क्वेश्चन में जहां पे भी x है वहां पे हम cos theta डाल देंगे. So therefore y is equal to tan inverse under root of, this is 1 minus cos theta upon, this will be 1 plus cos theta. अभी ऐसा क्यों किया हमने? Because 1 minus cos theta का और 1 plus cos theta का फॉर्मूला है, that's already known to us, so we need to do this. So y is further equal to tan inverse under root of, ठीक है, so 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2 होता है, and 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 होता है. So obviously ये 2 2 गया, so therefore y is further equal to tan inverse under root of, this is going to become nothing but tan square theta by 2. ठीक है ना? So therefore y is further equal to tan inverse of under root of tan square theta by 2. Simplify होके tan theta by 2 बन जाएगा, and therefore y is further equal to theta by 2. अब मैं वो प्रॉपर्टीज लिख नहीं रहा हूँ, सेवरल टाइम्स आई हैव ऑलरेडी रिटन अर्लियर, आपको इतना समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम में आपको लिखना है tan इनवर्स ऑफ tan x इज x. अभी थीटा रिप्लेस करो और डिफरेंशिएट करो. सो देयरफॉर y इज फर्दर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स. तो थीटा को रिप्लेस करेंगे, so theta will be replaced by what? So it will be replaced by cos inverse of x divided by 2. अब इसका ध्यान रखना है. हाँ, cos inverse of x divided by 2 means it is 1 by 2 into cos inverse of x है. अब मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट क्या करता है पता है, इसको ऐसा लिखता है cos inverse of x by 2 लिखता है, उसको लगता है एक ही मीनिंग है. इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्टूडेंट्स. दिस इज cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज cos इनवर्स ऑफ x by 2. ये x by 2 पूरा इनवर्स फंक्शन का एंगल है और इधर सिर्फ x है, अपॉन में 2 तो वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है. यू शुड बी नोइंग दिस. चलो नाउ डिफरेंशिएट एंड टेल मी योर फाइनल आंसर. minus 1 by 2 into root of 1 minus x square. Absolutely. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो dy by dx एंड जो फाइनल आंसर है दैट्स नथिंग बट -1 by 2 अंडर रूट 1 minus x square है. That's it. Problem is over.
ठीक है। अभी अभी इसी प्रॉब्लम में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x इज इक्वल टू cos टू थीटा डाला तो क्या होगा। तो राइट डाउन मेथड 2 विल डू इट इन शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम। आई विल नॉट राइट डाउन द स्टेप्स, आप लिखो आपके रेफरेंस के लिए, पर थोड़ा शॉर्ट में। तो चलो लेट अस पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। अब मैं वो पूरा ये वापस लिख के, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, cos टू थीटा लेंगे हम। cos थीटा तो ले चुके हैं, x इज इक्वल टू cos टू थीटा लेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा will be equal to cos inverse of x, या उल्टा लिख सकते हो cos inverse of x will be 2 theta, and therefore from here theta will be what, so theta will be cos inverse of x divided by 2, ऐसा होगा हमारे पास। प्लीज चेक आउट, अगर हमने x is equal to cos 2 theta डाला तो we will have this simplification। अब उससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलो तो लेट्स डू इट क्विकली। तो y will be further equal to tan inverse अंडर रूट ऑफ x के जगह पे cos 2 थीटा डालेंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। Now you will do the simplification on a fast track as I have done it earlier। जैसे यहाँ पे मैं कैसे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 लाया मैंने, तो यहाँ पे आप बोलो कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फॉर्मूला tan वही theta What? एब्सोल्युटली वेरी गुड, करेक्ट है। आपको ब्रैकेट में यहाँ पे tan थीटा मिलेगा, ठीक है ना। ओरली बता देता हूँ, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ गया tan थीटा। बीच में डॉट 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 डाला है, तो बीच के स्टेप्स आपको लिखने हैं स्टूडेंट। So therefore y is nothing but equal to tan inverse of tan theta is nothing but equal to theta according to the property of inverse function, and now we are going to replace theta। थीटा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे तो therefore y will be nothing but equal to cos inverse of x divided by 2। देखो सेम यही चीज हमें पहले भी मिल रहा था, the same thing we were obtaining that we have got it over here। तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड ऑब्वियसली जब y सेम है तो dy by dx क्या अलग आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो dy by dx इज -1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज द आंसर। प्रॉब्लम इज ओवर, दैट्स इट, प्लीज नोट डाउन। So I hope method number 2 is also clear to all. yes sir Okay, very good. Now same thing is to be done। अगर इसमें से थोड़ा चेंज कर दिया ना, तो और एक चेंज इसमें हो सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ओके, लेट मी टेल यू। So I just rub off this method number 2 now। ओके, अभी यही प्रॉब्लम में चेंज करके कैसे देगा, और अगर ये चेंज किया तो हमें क्या करना है, ठीक है। Now write down this, you will be doing it as a homework section। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, तो जो क्वेश्चन मेरे सामने है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। write down y is equal to tan inverse of अंडर रूट ऑफ a minus x अपॉन a plus x। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो 1 ही देगा। एट दीज टू प्लेसेस इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड गिव 1, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे 2 भी दे सकता है, यहाँ पे 3 भी दे सकता है, यहाँ पे 4 भी दे सकता है। तो जनरलाइज वे में ले रहा हूँ, यहाँ पे वो a भी दे सकता है। तो नाउ अगेन सी द एक्सप्रेशन टेबल, ऐसा एक्सप्रेशन दिया है। तो कैन एनीवन सी एंड टेल मी व्हाट सब्स्टिट्यूशन इज टू बी डन इन दिस। x equal A to a cos cos theta theta और a cos 2 theta। बराबर है, जैसे अभी हमने किया x इज इक्वल टू cos थीटा डाला,
वैसे ही यहाँ पे भी डालना है, तो चलो लिखो लेट इन दिस प्रॉब्लम, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, ये जनरेट हो गया, ए चेंज कर दिया, लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा डाल के करते हैं प्रॉब्लम को। लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, देयरफॉर थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ x बाय a। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos थीटा इज x बाय a, तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ x बाय a। अभी x के जगह पे जल्दी से a cos थीटा डाल दो आप, रिटर्न y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, x के जगह पे a cos थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में a कॉमन आ जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ऊपर बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। चाहिए तो चलो a कॉमन ले लेता हूं मैं, a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेके बाद में लिखो, पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ obviously this a is going to get cancelled and 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। देखो यही सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर है, सेम स्टोरी सेम सिचुएशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट विथ अस ओवर देयर, इसीलिए अभी ले लिया मैंने प्रॉब्लम, कंटिन्यूएशन में हो जाता है वो। तो देयरफॉर अभी पूरा स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ अस, तो y विल बी फर्दर इक्वल टू, सेम चीज बनेगा, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल डॉट 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 डाल देता हूँ, बट एग्जाम में दिस इज नॉट अलाउड। एग्जाम में आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। आई रिपीट, सिंस इट्स द सेम थिंग, डिक्टो कॉपी, कार्बन कॉपी है, पूरा सेम है, तो थीटा बाई 2 मिल जाएगा आपको। नाउ जस्ट रिप्लेस आउट थीटा, so therefore y is equal to theta will be replaced by, this is, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 by 2 into theta, तो 1 by 2 को अलग रखा and theta will be written as cos inverse of x by a, कंपोजिट फंक्शन है। now we differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to 1 by 2 remaining same। now you need to apply cos inverse of fx का फॉर्मूला, कंपोजिट फंक्शन है और ये हमारा fx है। so what is cos inverse of fx का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, so it is nothing but -1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस fx का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कंपोजिट फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, so it will be x square by a square into derivative of x by a, which will be nothing but 1 by cos inverse of fx minus 1 by under root of 1 minus fx the whole square into f dash of x होता है। now we simplify as far as possible, so dy by dx is equal to -1 upon 2 into under root of, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, अंडर द रूट विल बी गेटिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर है दैट इज गोइंग टू बिकम ए, जो एलसीएम वाला स्टेप है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू 1 बाय ए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये रूट के अंदर पहले एलसीएम लिया, वी हैव डन इट अर्लियर, फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम इटसेल्फ इट वाज दैट वे, फिर वहां पे हमने उसको सिंप्लीफाई किया, अब ये a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, so what is the final answer, and dy by dx, so that's nothing but equal to -1 upon 2 into under root of a square minus x square, ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस प्रॉब्लम। ये जो स्टार वाला प्रॉब्लम है इसका ये फाइनल आंसर है। तो जानबूझ के मैंने ये प्रॉब्लम सामने रखा है बिकॉज इट इज द सेम प्रोसीजर इन्वॉल्व ओवर हियर, खाली जो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा वो अलग था। देखो अगर a का वैल्यू 1 रख देंगे, a का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो देखो ये आंसर मिलेगा, चेक इट आउट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन, सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। हाँ, अभी ध्यान रखना आप, ये मैंने a दिया है, इधर 2 भी आ सकता है, इधर 3 भी आ सकता है, इधर 4 भी आ सकता है। अभी सपोज 5 दिया है, 4 या 5 कुछ भी आ सकता है। इधर 5 दिया तो आप डालोगे लेट x इज इक्वल टू 5 cos थीटा। आप बोल नहीं सकते प्रॉब्लम नॉट डन। ओके, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम।